Hello dear students, let us continue with chapter number 6, Learn to use pencil, which is same as Adobe Flash. So in today's lecture, we are going to study about pencil tools palette. What are different tools and how we can work with them, how we can use these tools to create animation. Sketch tool, coloring tool, draw tool, polyline tool, erase tool, clear tool, fill tool, pick color tool, select tool, select or move object tool, move or zoom canvas tool. Next is modify curve. So students, let us study in detail about these tools. Very first is sketch tool. You can see here sketch tool looks like this yellow pencil shape tool. You need to click on sketch tool on the tools palette. And then secondly, you can drag the mouse on the stage to draw freeform line. Or you can make any design like this as shown in the picture. Like this. You can draw anything. Okay. Next is polyline tool. Polyline tool is used to draw a segmented line. To draw a segmented line, follow the given steps. Click on the polyline tool. The tool looks like this. Just like polylines, multiple lines. Okay. Drag the mouse on the stage to draw. You need to first click on that polyline tool and then you need to drag the mouse to draw on the stage. This white surface area is nothing but the stage. You can draw here. You can see here the star is shown like this. But one thing you need to note that whenever you need to end this segment, you need to double click to complete the line. Okay? So remember this double click. There is another note. You can change the size and color of drawing pen using options palette and colors palette. Options और colors palette यूज करके आप ना साइज और कलर जो है ड्राइंग पेन की चेंज कर सकते हो. Third tool is a fill tool. Fill tool is used to fill an object with color. ऑब्जेक्ट को कलर से फिल करने के लिए fill tool यूज किया जाता है. Choose the color from the colors palette. Click on the shape you want to fill the color. The shape gets filled with the chosen color. You can see here जैसे हमने ड्रॉ किया था sketch tool या फिर polyline tool से with the help of these tools we can draw. After that fill tool से हमने इसमें कलर किया. देखिए, can you see here? मल्टी कलर स्टार. ये सारी चीज़ें तो आप पेंट में भी कर सकते थे. ठीक है, तो इसमें क्या खासियत है वही चीज़ हमें सीखनी है. इरेज टूल भी आपको पता है पेंट में जैसे आप यूज़ करते थे. जैसे कि इरेज करना है अगर मुझे, तो ये इरेजर के शेप का इरेज टूल होता है. इस तरह से आप पर्टिकुलर इरेज कर सकते हो जो चीज़ें नहीं चाहिए. ओके, माउस को ड्रैग ही करना है सीधे. बस वो टूल सिलेक्ट करो और ड्रैग करो यहाँ पे जो भी आपको इरेज करना है. उसके बाद आता है सिलेक्ट टूल. सिलेक्ट टूल इज यूज टू सिलेक्ट एनीथिंग ड्रॉन ऑन द स्टेज. स्टेज के ऊपर जो कुछ भी ड्रॉ किया हुआ है उसे सिलेक्ट करने के लिए. देखिए ये डॉटेड स्क्वायर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट किया हुआ. ओके, ड्रैग द माउस टू सिलेक्ट एनी रेक्टेंगुलर एरिया. तो पर्टिकुलर आप रेक्टेंगुलर एरिया सिलेक्ट कर सकते हो. अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है, जो नई चीज़ है आपके लिए, वो है टाइमलाइन पैलेट. तो इसे हम लोग बच्चों डिटेल में देखेंगे. टाइमलाइन पैलेट होता क्या है? टू डिज़ाइन एन एनिमेटेड मूवी द टाइमलाइन पैलेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. है ना? इट कंट्रोल्स अ फाइल कंटेंट ओवर द टाइम. फाइल के जो कंटेंट है टाइम के साथ साथ जो आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है हमें,
इसी की वजह से तो मूविंग या मोशन वाला फील आता है। अगर आप बहुत सारे पिक्चर्स का सीक्वेंस स्पीड में प्ले करते हो वन बाय वन, वन आफ्टर अनदर, इट विल बी गोइंग, देन इट विल लुक लाइक इट इज मूविंग। सो ये एनिमेशन कहलाता है। इट इज़ लाइक कंपाइलिंग ऑल द डिटेल्स ऑन द मूवी रील एंड सिक्वेंसिंग द सीन टू बी प्लेड। ठीक है, जैसे कि आपका मूवी का एक रील प्ले हो रहा है, सीक्वेंस जो सीन्स का है वो प्ले हो रहा है। यहाँ पर प्ले हेड इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए प्ले हेड इधर दिखाई दे रहा है, प्ले हेड। ठीक है, यू कैन सी हियर प्ले हेड इज गिवन। It indicates the current frame displayed on the stage. As a file plays, the playhead moves from left to right through the timeline palette. अब जैसे कि फाइल आगे आगे बढ़ता जाएगा, प्ले हेड मूव होता जाएगा लेफ्ट टू राइट, इस साइड मूव होता जाएगा लेफ्ट से लेकर राइट तक। ओके, थ्रू द टाइमलाइन पैलेट। ये पूरा का पूरा आप जो देख पा रहे हो ये टाइमलाइन पैलेट है। ठीक है, ओके। Come to the next point, frames, which is very important point. Frames control the period of time of the movie. A movie is made up of several frames. Each frame has some content. Actually, frame क्या होता है? Frames control the period of time of the movie. मूवी के टाइम का जो भी पीरियड होगा उसे कंट्रोल करने वाली फ्रेम्स ही होती है। मूवी इज मेड अप ऑफ सेवरल फ्रेम्स। बहुत सारी फ्रेम्स या पिक्चर्स, फोटोज़ हम बोलते हैं ना, तो सिंगल सिंगल जो अलग अलग होगी उसे हम फ्रेम्स बोलेंगे। ईच फ्रेम हैज़ सम कंटेंट। हर एक फ्रेम में कुछ ना कुछ कंटेंट होगा। दिस फ्रेम्स आर डिस्प्लेड इन अ सीरीज टू प्ले अ मूवी। मूवी प्ले होने के लिए ये फ्रेम्स क्या होंगे? डिस्प्ले होंगे सीरीज में। अ की इज़ अ फ्रेम इन विच यू डिफाइन अ चेंज इन द ऑब्जेक्ट फॉर एन एनिमेशन। की क्या होता है? एक फ्रेम होता है। की होता है एक फ्रेम इन विच यू डिफाइन अ चेंज इन द ऑब्जेक्ट फॉर एन एनिमेशन। एनिमेशन करने के लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो भी चेंज बताया गया है, चेंज इन द ऑब्जेक्ट फॉर एन एनिमेशन। द चेंज में बी मूविंग, रिसाइजिंग, जैसे कि छोटे से बड़ा 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 होते जा रहा है, इस तरह का इफेक्ट। मतलब इतनी फ्रेम्स अलग अलग है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये 4 अलग अलग फ्रेम्स है। ठीक है, तो आपको ऐसे दिखाई देगा ये प्ले होता है तो फटाफट आगे बढ़ेगा, तो छोटे से बड़े तक, तो आपको ये मोशन ऐसे दिखाई देगी कि बाउंसिंग बॉल भी इस पोजीशन में था, आगे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, जस्ट लाइक दैट, फिर नीचे आया नीचे आया नीचे आया, लाइक दिस। ओके, so the change may be moving, resizing, rotating, adding और deleting the object. ऑब्जेक्ट में से कुछ कम कम होते जाना या फिर कुछ ऐड होते जाना। अब यहाँ पर हमारे इसमें एक बहुत अच्छा एनिमेशन करने के लिए दिया है उन्होंने कि चंद्रमा पूरा है, चंद्रमा का जो शेप है वो पूरा है, लेकिन हमें आगे चांद को थोड़ा डिलीट 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 करते करते जाना है और फाइनली क्रिसेंट मून बचना चाहिए। या फिर क्रिसेंट मून से अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें आगे के फ्रेम्स ऐड करते 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 जाना है और पूरा हमें फुल मून दिखना चाहिए, लाइक दैट। तो ये एनिमेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग। देन इंसर्टिंग कीज़। बच्चों इसमें कीज़ किस तरह से इंसर्ट की जाती है? ड्रैग द प्ले हेड टू द नंबर वेर यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ की। आपको ये प्लस वाला साइन दिखाई देगा, जिससे आप ये प्लस बटन से क्या करोगे? की ऐड करोगे फ्रॉम द टाइमलाइन पैलेट। अगर डिलीट करनी है तो माइनस की है वहाँ पर अवेलेबल, तो माइनस कर देना है, तो वो फ्रेम जो होगी वो डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ड्रैग करना है प्ले हेड टू द नंबर वेर यू वांट टू डिलीट द की। अगर डिलीट करनी है तो ड्रैग करो वहाँ तक, और ऐड करनी है तो इंसर्ट की प्रेस करो प्लस साइन से। अब एक कंसेप्ट आता है ओनियन स्किन। व्हाट इज़ दैट? आपने ओनियन देखा है कभी? यस, ओनियन के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग लेयर्स 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 होते हैं। जब आप कट करते हो ना उसको ऐसे, तो पूरे ऐसे ऐसे लेयर्स 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 दिखाई देंगे पूरे, है ना? तो ये ओनियन स्किनिंग का पार्ट है। तो ओनियन स्किनिंग इज अ टेक्निक दैट अलाउज टू सी सेवरल कीज और फ्रेम्स एट वंस। अगर हम कट करते हैं ऑनियन को कि एट द सेम टाइम बहुत सारी लेयर्स या फ्रेम्स एक साथ हम देख पाते हैं,
तो वही इफेक्ट को यहाँ पे ओनियन स्किन नाम दिया गया है स्टूडेंट्स. ओके, सो you can see several keys or frames at once. It displays the various or previous keyframes image in the semi-transparent state. पुराना वाला semi-transparent state में आएगा. With the help of the animator to make decision on how to change an image for the next keyframe. अलग keyframe के लिए image कैसे change करनी है उसके लिए. ठीक है, तो ये डिसीजन करने का काम एनिमेटर का है. एक्चुअली ओनियन स्किन का है, ये एनिमेटर को हेल्प करता है. क्लिक अनियन स्किन बटन लाइक दिस, यू विल फाइंड दिस बटन अनियन स्किन बटन. ओके, इस तरह से दिखता है. एंड टू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट अनियन स्किन. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर एक्टिवेट करना है तो इस पर क्लिक करना है, डीएक्टिवेट करना है तो इस पर क्लिक करना है. नाउ देयर कम्स अ point, layers. Layers are like sheets of transparent paper arranged in a stack. Each layer is a separate thing, but when you have a stack of layers, each with a drawing on them, they can create an entire scene. For example, you may have a background on one layer and the animated object on another layer. अगर एक लेयर में बच्चों आपसे बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हो और आगे क्या है, कुछ ड्रॉ किया ऑब्जेक्ट दूसरे लेयर में है, यू कैन वर्क ऑन वन लेयर विदाउट अफेक्टिंग अदर लेयर. सिर्फ एक ही लेयर पे आपको काम करना है, पीछे का बैकग्राउंड स्टेडी रहेगा और सिर्फ आगे वर्क दिखाना है. सो वी कैन डू दैट. ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेयर्स. क्या ये चीज़ें आपको पेंट में अवेलेबल थी? नहीं, इसीलिए ये डिफरेंट है पेंट से. ओके, there are 4 types of layer: bitmap layer, vector layer, sound layer and camera layer. तो ये अलग अलग 4 layers होती है. ठीक है, to insert new layer click on add button. ठीक है, टाइमलाइन पैलेट में. और अगर रिमूव करनी है तो माइनस बटन प्रेस करना है. to change the layer name click twice on the layer. लेयर के ऊपर अगर आप twice 2 बार क्लिक करते हो तो आप इसका नाम चेंज कर सकोगे. ओके, यू कैन चेंज द नेम ऑफ द लेयर. The layer properties dialog box will appear. The type there the new name of the layer and click on the OK button. Next is a control panel. Control panel buttons are used for following purposes. Actually control panel होता ही इसलिए है ताकि हम प्ले कर सके, स्टॉप कर सके मूवी को. प्ले बटन जैसे कि आप सभी को पता है वीडियो प्ले करने के लिए इस तरह सा ट्रायंगुलर का बटन ही होता है. वीडियो या ऑडियो आप सुनते हो कभी भी, है ना. तो दिस इज़ द बटन फ्रॉम द टाइमलाइन पैलेट. इनेबल डिसेबल लूप. अगर आपको लूप डालना है तो इस तरह से इनेबल करना है या डिसेबल करना है, वो यहाँ से सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये सिम्बॉल्स का आज मैं आपको बता रही हूँ इंट्रोडक्शन. ओके, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन टाइमलाइन पैलेट. ऑन ऑफ साउंड. साउंड को ऑन ऑफ करना है तो ये सारे बटन यहाँ पर टाइमलाइन पैलेट पर है अवेलेबल. ओके, अब एनिमेशन एक्चुअल कैसे करना है वो हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे. देखिए जो अभी हमने बटन्स देखे हैं, यू कैन सी हियर. ठीक है, प्ले करने के लिए, लूप करने के लिए और साउंड डालने के लिए. ठीक है, और अनियन स्किन का जिसके हम बात कर रहे थे वो भी यहीं पर अवेलेबल है. कीज़ भी अवेलेबल है और लेयर्स भी. यू कैन सी हियर लेयर्स आर अवेलेबल, keys are also available, plus minus sign. okay, onion skin also available here. so आज हमने टाइमलाइन पैलेट्स के बारे में देखा और पैलेट्स के अदर टूल्स जो अवेलेबल है उसके बारे में देखा. बच्चों इसे ध्यान से पढ़िए आप. नेक्स्ट टाइम हमें एनिमेशन सीखना है. थैंक यू.